Hello everyone, this is Janvi, your mighty ho, and welcome back to my channel. I hope you all are doing really well. And today's video is gonna be a part 2 or 2.0 of this video. And if you haven't watched it yet, go watch it right now. Because I think a lot of you had some doubts and some questions in the comments of that video. And today we are gonna clear that all. So yeah, let's begin. First of all, in that video, I have never said anything about GATE. I have just shared my own personal story and my own journey. Where did it start? How did it start? And why did I quit and everything? But I understand your concern about the thumbnail, and I think it's my duty to justify myself and clear the things which are due to the thumbnail. First, we will talk about what is GATE, and then we can continue or justify upon that video. So basically, GATE is just like another entrance exam like JEE NEET. It's a national level exam, and it is conducted by IITs for students in engineering, technology or science. And this exam is usually for students who want to do masters or job, because GATE scores can help usually in 3 or 4 places. First, it gets you good college for masters, like masters from IITs, NITs or other top government universities. Secondly, it can get you jobs in public sector or government companies like ONGCs and Indian Oil Corporate Limited. Third, it can get you in research labs like DRDO or ISRO. And lastly, if you have scored really well in GATE, you can get scholarships or stipends while you are completing your masters in those colleges or universities. So now you know that it's for students who want to pursue masters in science or engineering or technology, right? It is a computer based exam. Usually you'll go to the center and you'll have your own computers where you will opt for this exam, and it is a 3-hour exam, and it is a 100 marks exam, contains 65 questions, out of which 10 questions are aptitude based, purely aptitude based, and the other 55 questions will be from your course. And when I say your course, it means when you want to apply or when you want to opt for GATE examination, you will have different options or different courses, like depends on what engineering you are doing: computer science, mechanical engineering, data science, or civil engineering or electrical engineering, XYZ. And based upon that, you will have your syllabus. Like I did for computer science engineering, so I had subjects like discrete mathematics, digital logic, DSA, and I list all the subjects over here, all other subjects over here. And similarly, for different papers, you will have different syllabus. You will have around 12 to 13 subjects, which usually you study in your first to second year of college. सो एज आई सेड कि 65 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 10 एप्टीट्यूड बेस्ड होते हैं और बाकी के 55 कोर्स क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से MCQs, MSQs एंड NAT क्वेश्चंस होते हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप. And based on that you score, and this exam is conducted once in a year, usually in February something, and उसके results next month आ जाते in a month, like in March or something. And the registrations usually start in August or September something tentatively. And your GATE score is valid for 3 years, which is why you are supposed to opt for it in 3rd year of your engineering. मतलब आप कॉलेज के 3rd ईयर में हो, 4th ईयर में हो या कंप्लीट कर लिया है, देन यू कैन ऑप्ट. क्योंकि 3 साल है, तो अगर तुमने 2nd ईयर में दे दिया तो 2nd, 3rd, 4th तब तक तो तुम्हारा गेट स्कोर वैलिड नहीं रहेगा. सो यू आर यूजुअली giving this exam in 3rd year or after that. So now that I have made everything clear about what is GATE and उसमें क्या होता है, किसके लिए होता है and everything, let's start about why I feel that GATE is a scam. It's my own personal opinion. Don't take it serious. And only if you relate, then you can maybe trust me. But if you cannot, do not get influenced by me. I'm just sharing my thoughts on it. देखो, अब GATE is really good. I agree. मैं मना नहीं कर रही.
But as for someone who is average like me or average student, it would be quite difficult to qualify GATE with high ranks. Mind me when I say high ranks, it's around 50 or 55, because it can get you IIT. First of all, preparation period is quite long, आई वुड से, बिकॉज गेट के अंदर 12 से 13 सब्जेक्ट्स होते हैं जो कंप्लीट करने के लिए यूजुअली स्टूडेंट को 1 साल तो लग ही जाता है, क्योंकि यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, यू कंप्लीट द सिलेबस थॉरोली, देन यू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, यू डू द PYQs. तो उसके क्वेश्चंस पे ग्रिप जमाने के लिए आराम से 1-1.5 साल लग जाता है, राइट तो वो टाइम तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, सामने उतना एफर्ट्स डाल रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि यू गेट गुड रैंक्स. और अगर मान लो कि तुमने अच्छे नंबर ला भी दिए और तुमको जॉब मिल रही है, तो जॉब में सिर्फ रैंक से काम नहीं बनता, यू विल नीड सम रियल टाइम स्किल्स ऑल्सो. कुछ तुम्हारे अंदर भी टैलेंट रहना चाहिए टू प्रोवाइड वैल्यू इन दैट जॉब. तो जो गेट रहती है पूरी थियोरिटिकल बेस होती है, जो भी कॉन्सेप्ट्स तुम पढ़ते हो उसको अप्लाई करते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, इज ऑल theoretical base. You do not get any practical implementation, you do not get any skills out of it, and because of that it will be quite difficult for you to get a job when you enter the real corporate world, right? So that's why I feel कि जब student अपने 2 से 3 साल उसमें वेस्ट करने के बाद उसमें से कुछ मिलता नहीं है, and then you start again because you did not have skills. That's what I am saying. मतलब करने को तो कोई भी गेट स्टार्ट करके प्रिपरेशन कर ले, अपना टाइम, मनी तो नहीं, हाँ इफ़ यू आर टेकिंग सम कोर्स तो मनी एंड एफर्ट्स डाल के तुम दे रहे हो, और ज़रूरी नहीं है कि सामने तुम्हें गुड रैंक्स मिले. बट इंस्टेड ऑफ दैट इफ़ यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन स्किल्स, अगर तुम वही 1 साल स्किल पे डाल रहे हो तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड जॉब. जैसे कि तुम मान लो कि डेटा एनालिसिस है या अभी ग्रोइंग फील्ड EIML है, उसमें अगर उतना टाइम डाल रहे हो तो ईजिली यू विल क्रैक अ गुड पैकेज, विच इज़ नॉट अ श्योरिटी वैल्यू अपियर फॉर गेट. सेकेंडली, गेट जो पूरा है, आई सेड इट इज़ एवरीथिंग थियोरिटिकल, मतलब वो एकेडमिक्स के बेस पे रहता है. जो तुम लोगों ने सब्जेक्ट्स कॉलेज में पढ़े हैं, जो सब्जेक्ट्स या सिलेबस में है, वो सब जो रहता है, इट कैन रियली हेल्प यू टू strengthen your knowledge and academics, but it cannot get you internships or jobs. For that you will need skills. तो लाइक गेट पे तुम 1 साल डाल रहे हो, तो उस टाइम पे तुमको पूरा उसी के साथ कमिटेड रहना पड़ेगा. तब तुम कुछ भी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DSA, पाइथन, ये कुछ रियल वर्ल्ड में सीख नहीं पाओगे, विच इज़ अ नेगेटिव साइड. क्योंकि अगर तुम मान लो कि कंप्यूटर फील्ड से हो, तो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि तुम 3rd या 4th ईयर में स्टार्ट करने लग जाओ कि तुमको कौन से डोमेन में जाना है, उसके लिए कौन सी स्किल्स चाहिए वगैरह वगैरह. क्योंकि मास्टर्स किस चीज़ में करना है उसका भी तो तुम्हें नॉलेज होना चाहिए. लाइक EIML में करना है, डेटा साइंस में करना है, उसकी स्किल्स होनी चाहिए, उसके रेलेवेंट कुछ प्रोजेक्ट्स होने चाहिए. उसके बिना यू वुड फील क्वाइट अंडर कॉन्फिडेंट व्हेन यू एंटर इनटू द रियल वर्ल्ड. फिर दूसरी चीज़ आई फील इज़ दैट कास्ट इश्यूज एज यूजुअल. कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में ये तो रहता ही है. आई एम फ्रॉम जनरल कास्ट, सो अगर मैं SC ST या OBC से होती तो मेरे लिए ईजी रहता कि उतनी मेहनत ना करके भी मैं अच्छे रैंक्स ला रही हूँ, मेरे को सीट मिल रही है. बट अगर तुम जनरल कैटेगरी से हो तो यू विल हैव टू वर्क रियली रियली हार्ड. अच्छा टाइम, एफर्ट सब लगाना पड़ेगा गेट के पीछे, जस्ट सो दैट you score a good rank. So I think caste also impacts a lot because it is directly proportional to the amount of efforts you put in and the amount of results you get. Because usually ऐसा होता है कि हम जनरल वालों से आधी मेहनत करके भी SC ST OBC वाले सीट ले जाते हैं, which is very very wrong in the education system, but we cannot help, right? We just need to understand how it works and we need to make decisions which are in the benefit of our future. तीसरा, अभी देखो गेट जो है वो मास्टर्स के लिए और कुछ गवर्नमेंट कंपनीज के लिए ही बेनिफिशियल है. जैसे तुमको मास्टर्स करना है या फिर किसी ऐसी गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी, जैसे मैंने बोला कि ONGC या इंडियन ऑयल कॉरपोरेट लिमिटेड में जाना है, या फिर रिसर्च लैब्स लाइक DRDO और इसरो, उसमें जाना है, तो इट्स बेनिफिशियल. बट इफ़ यू आर प्लानिंग टू गेट इनटू सम गुड प्राइवेट कंपनीज और
और इफ़ यू आर एमिंग कि मेरे को अच्छा सा फॉरेन जॉब मिल जाए या फिर वहाँ पे ऐसी कोई जॉब मिल जाए कि वो लोग तुम्हें स्पॉन्सर करे, तो दैट इज नथिंग रिलेटेड टू गेट, क्योंकि उस चीज में तो प्योरली तुम्हारी स्किल्स काम आएगी, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स, तुम्हारा क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब काम आएगा, बिकॉज गेट का कुछ लेना देना नहीं है. गेट विल जस्ट बी हेल्पफुल फॉर मास्टर्स एंड सम जॉब्स एज आई सेड. तो इफ यू आर प्लानिंग कि तुम्हें फॉरेन जाना है या तुम्हें किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब चाहिए, तो it's of no use. And to be honest, sometimes गेट कैन बी अ बर्डन टू द किड, बिकॉज अगर तुम गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आई थिंक यू विल रिलेट कि जब तुम गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो इट्स सो मच ओवरवेलमिंग. तुमको अपना सारा टाइम उसी में देना होता है. जब मैं अपना प्रिपेयर कर रही थी तब 2-2 घंटे के लेक्चर्स होते थे. आई टुक अ कोर्स फ्रॉम PW, सो पूरे दिन में आई जस्ट कंप्लीटेड 3 लेक्चर्स एंड अदर 2 to 3 hours फॉर क्वेश्चंस. लाइक 3 लेक्चर करके ही 6 घंटे हो गए और बाकी के 2 घंटे में आई डू क्वेश्चंस. तो उसके साथ अलग अलग चीजें मेंटेन करना वुड बी वेरी वेरी टफ. जैसे स्टूडेंट को इंटर्नशिप करनी हो, स्किल्स डेवलप करनी हो, हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करना हो या कॉलेज इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना हो, तो ये सब एक साथ में लेके चलना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, क्योंकि गेट में बहुत अच्छे से प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करनी पड़ती है कंसिस्टेंटली. वो भी एवरी डे यू सॉल्व और यू कंप्लीट सम ऑफ योर सिलेबस विदाउट फेलिंग. सो या इट्स क्वाइट ओवरवेलमिंग फॉर द स्टूडेंट टू टेक एवरीथिंग together, and in that situation the student might miss a lot of things, as I said कि events, hackathons वगैरह वो उसको छोड़ना पड़ेगा if the priority is gate. And one more thing, तुम लोग गेट के पीछे ऐसे भागे जा रहे हो जैसे इट्स द एंड ऑफ द यूनिवर्स, उसके आगे पीछे कुछ है ही नहीं. हाँ, मैं मानती हूँ कि कुछ लोगों का ड्रीम होता है NIT IIT जाने का. आई अंडरस्टैंड, आई रिस्पेक्ट दैट. तो वो लोग JEE के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, इसके लिए भी करते हैं, गेट के लिए भी करते हैं जस्ट टू गेट इनटू IIT. बट द थिंग इज IIT में जाके भी तो तुम्हारी स्किल्स ही काम लगेगी. तुम JEE और ये गेट को ऐसे मत ट्रीट करो जैसे इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड. उसके बाद ना तुम्हारा कुछ कल्याण होने वाला है, ना उसके बिना कुछ होगा. राइट, आई अंडरस्टैंड कि तुमको जाना है, तुम उसके लिए मेहनत करते हो, यू गिव द एग्जाम एंड यू स्कोर. बट अगर नहीं होता है तो दैट डजंट मीन यू आर अ फेलियर. यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्किल्स, क्योंकि गेट तुमको जॉब देगा उसकी गारंटी नहीं है, पर स्किल्स तुमको अच्छा पैकेज देगा उसकी 110% गारंटी है. तुम किसी को भी पूछ लो, किसी भी सीनियर्स को या किसी भी इन्फ्लुएंसर को, दे वुड ऑलवेज से कि प्रोजेक्ट्स पे काम करो, स्किल्स पे काम करो, हैकेथॉन्स में पार्ट लो, बिकॉज उससे तुम्हारा जो टेक प्रेजेंस है वो बढ़ता है. मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द कंप्यूटर किड्स, कंप्यूटर साइंस किड्स. तो अगर तुम आंख बंद करके सिर्फ गेट के पीछे भागे जा रहे हो और नहीं हो रहा तो अपने आप को फेलियर मान रहे हो, तो इट्स जस्ट ऑफ नो यूज. क्योंकि ये सेम चीज आई वुड से टू JEE ऑल्सो. JEE वाले बच्चों को भी यही समझाऊंगी कि हाँ ठीक है, आप दो अपना 100%, बट नहीं होता है तो उसको पकड़ के मत बैठ जाओ, उसको जाने दो. इट्स सेंसलेस टू जस्ट hold on to it and cry because you did not get it. Just let it go. Maybe किसी और पाथ के थ्रू तुम वही डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे ना. IIT भी क्यों जाना है, अच्छा पैकेज चाहिए वही ना. तो लाइक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो Tier 3 कॉलेज से भी अच्छा पैकेज फोड़ लेते हैं. So that's what you have to do. और last thing I would say is कि गेट क्वालिफाई करना is not important. गेट में अच्छे रैंक लाना is important, क्योंकि अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अपने खुद के क्राइटेरिया होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है. एवरी ईयर कट ऑफ अलग अलग होता है डिपेंडिंग अपॉन योर कास्ट एंड एवरीथिंग, इट चेंजेस. So if you are blindlessly running behind gate, then it might not be beneficial to you, because it cannot guarantee good scholarship or it cannot guarantee, मतलब आई एम सेइंग कि गारंटी नहीं है कि तुमको मिलेगा ही. सिर्फ क्वालिफाई कर रहे हो तो कोई गारंटी नहीं. एंड इनफैक्ट गेट के वेबसाइट पे भी लिखा है कि गेट को सिर्फ क्वालिफाई करने से ही तुम्हारी गारंटीड जॉब या गारंटीड एडमिशन या गारंटीड स्कॉलरशिप नहीं रहती. उनके ही वेबसाइट पे लिखा है. इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द ईयरली कट ऑफ एंड द criteria of that particular job or university. So for me, I think it was a waste of time
because I felt it was a scam. I was running behind it blindlessly. I did not understand the things very clearly. I did not had clear goal in my mind, I would say. And as for someone जिसको foreign जाना है, abroad पढ़ना है और अच्छी सी जॉब चाहिए वहाँ पे, तो मेरे लिए तो it was of no use. But if you have your own goals, if you are clear about the things you want in life, then you can go after considering some points, as I said. I know not everyone would relate to it, but कोई average student है मेरे जैसा जिसको अभी बहुत ज़्यादा बर्डन हो या प्रेशर हो, तो आई वुड रियली से कि ठीक है, टेक योर टाइम, काम डाउन. इट्स नॉट द एंड ऑफ योर करियर. you would have a lot of other opportunities as well, and a competitive exam is not going to decide where you land in life or what amount of money you would make. You'll always have other options. You'll always have other roadways to reach the same destination. और मैंने ये जो भी बोला अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोला और मेरे खुद के ओपिनियंस हैं ये, बट इफ़ यू रिलेट एंड एग्री टू इट, आई एम really happy about it, and I hope I have solved all of your questions. And first of all, thank you so much for watching that entire video and showing your concerns over there. I really appreciate it, and I genuinely care about what you guys think about it. So yeah, I think there's a small misunderstanding about the purpose of that video. My purpose was never to say that don't prepare for GATE or it is a waste of time. I just shared my personal journey and my experience over there. But still, if you find it quite contradictory, I would like to clear some things over here, because I think that as I might be a small creator, but my life is open to a lot of you, and you guys should know about it. I don't have anything to hide from you, and I just want to show the real part of my life, or I would say that I want to show you the reality. I think that everyone's journey is different. Everyone has their ups and downs, and similarly I had my own, and I can openly talk about it, and I do not feel shame to accept that I quit GATE or I failed at GATE. It was just a wrong decision in my life because it did not align with my goals. We all have our strengths and weakness, and I don't mind acknowledging mine. I am okay with accepting my weakness and my flaws. So to clear the misunderstandings or your doubts, I would say that I think you found the thing wrong when I said that I scored 9 CGPA, but I'm bad at coding. Then why not? CGPA lana is not a big thing, bro. If you are good at your submissions, assignments, attendance, और theoretically तुम अगर अच्छे हो तो पेपर्स लिखना और अच्छा स्कोर करना इज़ नॉट अ बिग डील. बट कोडिंग नहीं पसंद, मतलब तुम करने को सिलेबस में जितना है उतना कर लोगे, बट उसमें करियर बनाना और उसमें इंटरेस्ट लाना ताकि तुम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस सीख सको इज़ डिफरेंट थिंग. सो आई डो नॉट लाइक कोडिंग इन दैट वे कि उसमें कोर कोडिंग में घुस के उसमें करियर बनाना इज़ नॉट अ थिंग फॉर मी. आई कैन स्कोर वेल इन माई एग्जाम्स बिकॉज आई हैव माई सिलेबस. मेरे पास थियोरी है, मेरे असाइनमेंट्स टाइम पे होते हैं, मेरे सबमिशंस भी टाइम पे होते हैं, तो वाई वुड आई नॉट स्कोर वेल. मेरे वाइवा भी अच्छे जाते हैं, तो देर इज़ नो रीज़न कि आई डो नॉट स्कोर वेल. और कोई भी इंसान 8-9 CGPA ला सकता है इफ़ दे आर रियली गुड एट देयर एकेडमिक्स. बट जब बात कोडिंग एंड स्किल्स की आती है तो यू वुड हैव स्पेसिफिक इंटरेस्ट इन टू इट, देन ओनली यू कैन डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टफ इन योर करियर. एंड आई थिंक जेई और बोर्ड्स वाले चीज़ पे भी थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा. बट कई लोगों का होता है कि जेई तो क्लियर हो गया बट बोर्ड्स नहीं हो पाया, बोर्ड्स में 75% नहीं ला पाए. तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस आई थिंक, क्योंकि जेई में तुम्हारा सिलेबस होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है उसको समझते हो और उसके बेस पे तुम MCQs सॉल्व करते हो. वाइल इन बोर्ड्स पूरी की पूरी थियोरी रटनी पड़ती है. ठीक है, न्यूमेरिकल्स की बात साइड पर छोड़ते हैं, लेकिन जो थियोरी रहती है वो तो तुम्हें पढ़नी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी ना. तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग कि तुम अगर कॉन्सेप्ट के पीछे भागे जा रहे हो, जेई को टाइम दिए जा रहे हो, तो बोर्ड्स का पढ़ना
और उसमें अच्छे स्कोर करना कैन बी डिफ़िकल्ट। तो मेरे से दोनों नहीं हुआ। मैं जेई के पीछे भाग रही थी, मैं जेई के कॉन्सेप्ट्स कर रही थी, उसके एमसीक्यूज़ कर रही थी, तो उसके चक्कर में मैं बोर्ड्स की जो थियोरी होती है वो नहीं कर पाई, तो मेरे बोर्ड्स में नहीं आए। ऐसे कैसे हो गया कि जेई तो हो गया और बोर्ड्स नहीं हुआ? इट्स ऑब्वियस, कई लोगों के साथ होता है, कई स्टूडेंट्स ने ये फेस किया होगा कि जेई के चक्कर में हम लोग ने बोर्ड्स को टाइम नहीं दिया, बोर्ड्स को हल्के में ले लिया। आई वुड से मैंने हल्के में ले लिया था कि हाँ जेई हो रहा है मेरे से तो बोर्ड्स तो हो ही जाएगा ना। उस चक्कर में मैंने बोर्ड्स को उतना टाइम नहीं दिया, सिर्फ 1 महीना पहले प्रिपरेशन स्टार्ट किया एंड आई थिंक उसकी वजह से आई डिड नॉट स्कोर वेल। एंड टू एड्रेस द पार्ट की आई रियली लव एडिटिंग एंड क्रिएटिंग कंटेंट बट आई एम नॉट गुड एट इट। तो किसी चीज़ को पसंद करना और उस पर एक्सपर्ट होना इज़ डिफरेंट थिंग। आई रियली लव एडिटिंग, आई रियली लव क्रिएटिंग कंटेंट बट आई एम नॉट अ प्रो। मैं सिर्फ ऐसे सिंपल एडिट्स कर सकती हूँ, मैं रील्स बना सकती हूँ, डे इन माई लाइफ थिंग्स बना सकती हूँ, बट जो प्योर या अच्छी वाली वीडियो एडिटिंग होती है वो मेरे से नहीं होती। आई एम नॉट प्रो। मुझे सिंपल एडिटिंग पसंद है और आई एम नॉट गुड एट कंसिस्टेंटली पोस्टिंग ऑन यूट्यूब, राइट? तो वो चीज़ मेरे को प्रैक्टिस के साथ आएगी। मेरे को एडिटिंग पसंद है तो मैं गिव अप नहीं करूँगी। ऑब्वियसली मैं धीरे धीरे पोस्ट कर करके वीडियोस या रील्स बना के उससे सीखूंगी एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो इवेंचुअली शायद एक टाइम आएगा जब आई वुड बी प्रो एट इट, आई वुड बी रियली गुड एट इट, आई वुड बी एन एक्सपर्ट. But currently, even though I love editing, I'm not really good at it. Simple. I accept all these things and I really hope that it cleared the things with you guys also, and I don't want any unnecessary hate because of misunderstandings. That's it. So yeah, that was it for today. I hope you liked the video, and if you still have any questions, drop them in the comments and I'll try to answer them, or maybe if it's again too much I'll make a video on it. That's it. Bye bye.